what is happening in the market at any given time. So I can recite a few lines of that. So it's like this, that कभी DI, कभी FI, inflation, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सबका है ये खेल. विजय गा के. अरे गा के कहाँ, तो लास्ट का 4 लाइन गाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ. तो कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सबका है ये खेल. प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल कमाना यहाँ, यदि थोड़ा हटके जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरी जान. और उसका दूसरा स्टेंजा ये है, कभी मैक्रो, कभी माइक्रो, कभी स्लो डाउन, कभी स्केल, कभी यूएस, कभी चाइना, कभी झगड़ा, कभी मेल. टेंशन के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के ट्रेडिंग में मेरी जान. और लास्ट का ये है, कभी टेंशन, कभी फियर, कभी क्राइसिस की धुन, झेल सकता नहीं इनको तो म्यूचुअल फंड चुन. इन्वेस्टमेंट के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरी जान. ए दिल है सिंपल कमाना यहाँ, यदि लॉन्ग टर्म बस लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म मेरी जान. Okay, we'll get you to add the musical notes later. But since you did talk about the conviction in mutual funds, कि ये noise, बारिश, झगड़ा, झंझट सब तो चलते रहेंगे. What should retail investors be doing right now? Investors should? What should they do right now in this market? जहाँ इतना noise है, इतना volatility है, what is the future for investors? Now you see, this is what is every bull market, every euphoria market turns into a crisis. This is what data suggests. This is what we have seen in the market. If you see the 50 years history, so every crisis will turn into an opportunity. And this is what happened. Between 2021 and 2024, people made a lot of money. Not in percentage term, but they multiplied their money. So now this is the side effect of, जिसको बोलते हैं प्यार के side effect है. तो ये प्यार के side effect है भाई. So yeah, wait, it's going on for 2 years, for last 2 years. But I think, like everybody is also saying, that table is going to turn, Things are going to change. But one thing what I feel that investors should keep it in mind, that whichever stocks have performed in the past may not perform in the future. Whichever shares have multiplied in the last bull market may not participate in the next bull market. So it is a rotation theme. So theme is concerned, it is on a rotational basis. So now you have to do, your homework, and whatever is given you money, not necessarily that is going to give you money. So you have to be, have money, you have to be careful in this market. But ultimately, I think people will make big money if you can sense what is the emerging theme in this market, then you will make big money. So where are you sensing the next emerging theme? Considering even Rhythm Desai just said कि पैसे बनाने हैं तो विजय केडिया से पूछो कहाँ स्टॉक में डालना है. नहीं, वो तो उनको जवाब नहीं देना था इसलिए मेरे पे टाल दिया, तो वो अलग बात है. So मेरे को I think the next theme for next 10 years theme I have given acronym to it. It is like RISE. So this RISE theme is going to make money for investors. And in this RISE, I will tell you that R stands for renewable. So renewable and energy transition. Because I feel like what oxygen is important to the body, same way energy is important to a nation. Energy runs the nation, like oxygen runs us. So I think this is a new theme, maybe because of our AI and data center, whatever. So many people have spoken about that. So I think this R stands for renewable energy, renewable and energy transition. That should do well. And I stands for infrastructure and logistics. So I think this is again a sunrise theme. And S is for security. It could be defense and it could be cyber security. Because defense security also requires cyber security. So that is going to be a play out. That is going to become a very big theme. What I feel that nowadays things have become so much depending on data, a nation depending so much on data, that you don't have to, even if you attack, like suppose, I had said somewhere else, like if I suppose attack your data center through cyber security, breach of cyber security, your entire system will become, stranded. So
this is what S stands for security and cyber security, and E stands for emerging technology. So whether it is either AI or a data center or EV or payment gateway or whatsoever. So this emerging technology. So if I think this is what I am focusing upon, if investors focus on this theme, they should make money in next 10 years. आपने बोला रिन्यूएबल्स, इंफ्रा, सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. सिक्योरिटीज का अगर हम देखें तो डिफेंस में काफी उछाल आया है स्टॉक्स में. वहां पर भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज काफी आ रही हैं. तो आपको क्या दिख रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज दिख रही है और भारत में कौन कौन से कंपनीज हैं जो कर रही हैं? So इसमें डिफेंस का तो सब everybody knows about defense. वो तो It's an old story. PSU पैक हो गया वो. हाँ. Yeah, and P wise also it's very expensive discount wise. So I'm not investing into that kind of security. But I've invested in few cyber securities companies. So those are newly listed in the market, you know. So I'm invested in all of them. Whatever, there are 4 companies listed, I'm invested. But there is a caveat. One should remember that things are changing, technology is changing so fast. You know, you never know. Whatever we feel that today is the 100% guarantee. There is nothing called guaranteed in this market. Yeah. So today we feel that it could make money for us. Maybe tomorrow technology changes. So that is why you have to be on your toes every given time. So this is what I mean. Yeah. सिक्योरिटीज में भी वॉरफेयर चेंज हो चुका है. आप देखते हैं कि वी यूज्ड टू हैव big missiles, high cost missiles. Now it's a drone system, low cost, high impact security. Cyber security, you mentioned that's from the web point of view. But from the low cost, high impact, आपको वहाँ पर you are seeing opportunities in some small and mid cap companies which are working really well in that space. नहीं, इसमें मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, इसमें ज्यादातर जो शेयर्स हैं, जो जैसे आप नाम लीजिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी में भी जो भी, ये सारे शेयर्स अनलिस्टेड कैटेगरी के अंदर में. ये लिस्टेड कभी ना कभी तो मार्केट में आएंगे. हाँ, वो आएंगे. तो आपको आइदर यू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज और यू वेट फॉर देम टू गेट लिस्टेड. तो डिफेंस के अंदर में भी ऐसा ही हो रहा है. स्टार्टअप में इतने काम हो रहे हैं. अभी जैसे ब्रह्मोस की आपने बात किया, कोई मिसाइल विसाइल का कोई बात किया, वो भी कोई बैंगलोर की या चेन्नई की कोई कोई स्टार्टअप है जो उसमें इन्वॉल्व है. तो ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है इसके अंदर में. तो ये जो नया स्पेस जो है स्टार्टअप्स का, ये इट इज गोइंग टू प्ले वाइटल रोल. तो उसके अंदर में लेकिन कॉमन इन्वेस्टर की वहां पर पहुंच नहीं है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड विच इज वर्थ इन्वेस्टिंग, विच इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग. क्योंकि इसमें से 10 में से एक कंपनी है जो सक्सेस होगी, 9 कंपनी वो फेल हो जाएगी. सो ये थोड़ा ये थोड़ा ट्रिकी है. तो इसके बोल के बेटर है कि आप जो लिस्टेड कंपनी है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी मार्केट गिरता है उसके अंदर में अगर आपको लो पी में अगर मिलता है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज द सेफर रूट. और इंफ्रा में तो बहुत कंपनियां, इतनी इंफ्रा कंपनियां हैं, वो सब ऊपर से 1/3 भाव में मिल रही है. आप जो भी आप 5-7-10 आप नाम लेंगे, लार्सन को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा लार्सन के अलावा जो बाकी नीचे की कंपनी है वो सब 1/3 और हाफ होता है, 40-60-70% डिस्काउंट में मिल रही है. और सबके आप पास देखिए, एवरी वीक यू विल सी ऑन और योर टीवी चैनल कि इस कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, इसको 500 करोड़ का मिल गया, 700 करोड़ का ऑर्डर मिल गया. तो ये इनका ऑर्डर बुक बनते जा रहे हैं इनको, और अभी एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम है. जो पहले इंफ्रा के अंदर में समझिए 100-150 कंपनी होगी एग्जीक्यूट करने वाली, अभी अच्छी एग्जीक्यूट करने वाली लिस्टेड स्पेस में तो 4-5 ही कंपनियां. तो इस बोलकर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा. बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया कुछ होने वाला भी नहीं है, बिकॉज स्टिल वी आर फार बिहाइंड. तो इसमें जो लिस्टेड है उसके अंदर में शेयर सस्ते, उसमें दिमाग लगाना चाहिए. So Vijay, one is the rise theme, but you are an investor. I remember 3 or 4 years back, you were the first one who said कि I am buying China. Right? You were the first one in the March lows who said ki buy the market now. You've been very ahead of the herd and you've taken those contra bottom up bets. What is that large sizable bet that you can spot in this market right now and globally? Let me not just, stick it to India. So, ahead of the curve में तो ऐसा है कि जब लाइन घूमती है तो आप सबसे पीछे रह जाते हो. तो वो तो टेम्परेरी है, वो ahead of the curve का बात है. और so far Chinese is concerned, yes, I had bought some ETF that your Hong Kong stock ETF was it's listed here in NSE and all that. I had bought that, but last week I exited because I found maybe that Chinese economy may do well, but maybe Chinese stock, although I got 50% return in 1.5 or maybe 2 years time, so that is okay. So, but I
I have sold all my Chinese ETF and all. Now again, I'm focusing on Indian market. So this is one change. And meaningful stake, I bought some stake in one solar company, so it's integrated solar plant. I have taken some percentage into that company. So I'm bullish on solar, as I said. For the seasoned investor, and perhaps that's also a reason why the market was flat, because there was so much money last year at least, which was going in private equity and which was going a lot in IPOs as well. Till, of course, the March fall happened. Within the private equity space, because you are a large investor there, where do you find these big sizable opportunities right now? So I am focusing on deep tech companies again cyber security companies and plus related to power. Whatever the rise theme, actually I said I am focusing on that rise theme, and mainly into last week only I invested in one company which is into solar pump and all, rooftop solar and solar pumps and all, which is it is पीएम का भी है ना, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब जो गवर्नमेंट का जिधर फोकस है, तो मेरा फोकस उधर है जिधर गवर्नमेंट का फोकस है. सिंपल एक बात है, उस पे प्लसेस भी है माइनसेस भी है उसके अंदर में, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. सो पीपल डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स. एज यू सेड, they couldn't do well in last 2-3 years because they were fully dependent on government money, and government was busy in distributing freebies and all, so all like free electricity, free ye yojana, बहन योजना, भाई योजना, सब भांजी योजना. So all these actually couldn't get money from the government. That is why they suffered. तो लेकिन इसके अंदर में government has given priority कि उनका एक टारगेट है कि हाँ भाई ये सोलर पंप और ये उनको प्रायोरिटी के अंदर में लगाने का है. तो आई हैव इन्वेस्टेड इन विच इज एट मैंने अनलिस्टेड स्पेस. सो दिस इज व्हाट द लेटेस्ट आई डिड. विजय, रिटेल इन्वेस्टर को पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो उतना रिटर्न नहीं मिला है, पर आप जैसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना पेशेंस रखना पड़ेगा? नहीं, शेयर बाजार तो भाई पेशेंस का ही गेम है. यहाँ तो 3 चीज बहुत जरूरी है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस. और पेशेंस आपके हाथ में है नहीं जब तक. वो मेरा एक गाना है कि बोले ये बॉटम है, इस बॉटम का नहीं है कुछ पता. विजय, गाने हमें ऐसे नहीं समझ आते हैं. आई मीन यू हैव टू पुट अ म्यूजिकल नोट टू इट. कोई भी समझ ना पाया, नहीं कोई पाएगा, जब तक रहेगा लेते नया लो बनाएगा. गिर जाएगा, बिक जाएगा, वहीं पे तो बॉटम है, ये बॉटम है, इस बॉटम का नहीं है कुछ पता, ये एक भ्रम है. तो धीरज की यहाँ पर वो टेस्टिंग, पेशेंस का यहाँ पर जो आपका टेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे. तो जब तक आप हार नहीं मानोगे तब तक मार्केट गिरता रहेगा, तब तक आपको वो धीरज को टेस्ट करेगा. जिस दिन आपने बोला अरे भाई और मेरे से नहीं देखा जाएगा, वहीं पर बॉटम बनता है. ये इतिहास बताता है यहाँ पे. क्या आपको लगता है बॉटम हो गया? नहीं, ये बोलना मुश्किल है. और मैं कभी भी इंडेक्स के बॉटम को नहीं देखता हूँ. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी इंडेक्स के बॉटम को कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ. इंडेक्स का बॉटम अपना अलग चाल चलता है. एक बात आप समझिए कि 2003 से 7 के बीच में जो इतना बड़ा हिस्टोरिकल तेजी आया, उसके बाद में 2008 में मार्केट क्रैश हुआ. लेकिन 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ, 2008 से 14 के बीच में इंडेक्स ने नया हाई नहीं दिखाया. इंडेक्स इधर ही घूमता रह गया. लेकिन कई शेयर ऐसे हैं जो 2008 और 14 के बीच में मल्टी बैगर हुए, 10 गुना, 20 गुना. मेरे 3 शेयर 100 गुना हुए वहां 2008 के बाद में 2016-17 तक, 100 टाइम्स. तो वो मेरे को ये समझ में आ गया मेरे को कि इंडेक्स को देखकर मेरे को इन्वेस्ट नहीं करने का. इंडेक्स एक कंफर्टिंग फैक्टर है आपको कि हाँ भाई इंडेक्स ऊंचा आया तो मार्केट अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है. अभी उसने क्या बताया उन्होंने कि मई का जो सेल्स आया उसमें गाड़ियों का सेल्स ऑल टाइम हाई है, इसका सेल्स ऑल टाइम हाई है, उसका सेल्स ऑल टाइम हाई है. तो ये अपने को बताता है इंडेक्स पूरा आपको ठीक, आपको मार्केट का जो है वो रूपरेखा आपको नहीं बताता है. तो मैं इंडेक्स पे फोकस नहीं करता हूं. मैं बॉटम अप अप्रोच है, इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल सेक्टर, उस पे मैं फोकस करता हूं. और
और ये ध्यान में ये रखता हूं कि ये इंडेक्स अगर पड़ा भी रह जाए, मार्केट क्रैश नहीं हो, मार्केट का सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक भी हो, साइडवेज भी हो, तो भी शायद ये अच्छा रिटर्न देगा। तो विजय, आपने बोला कि आपने हैंग सेंग ETF एग्जिट कर दिया अभी अपनी पोजीशंस। Where is it that you've increased allocation, say in the last 6 months? So as I said, again that rise that I have bought, I think 2 companies into solar space and 1 company that into pump and rooftop solar. So that is also again solar. So I've increased my investment in this, yeah. And plus I have bought 1 infra company, some shares in infra companies also I have bought. And plus I'm looking for unlisted space now. I'm very active in unlisted space. ऐसा क्यों? लिस्टेड स्पेस में आपको वैल्यूएशन ज्यादा दिखती है या अनलिस्टेड स्पेस में अपॉर्चुनिटी और रिटर्न्स आगे जाके ज्यादा दिखते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है अनलिस्टेड स्पेस में, एक तो क्या होता है आपको क्वांटिटी मिल जाती है आपको, बाकी मिड कैप तो पूरा इलिक्विड है, इसके अंदर में आपको घुसना आपकी मर्जी से, निकलना आपके हाथ में है नहीं, तो वो तो भगवान के हाथ में है कि आप कब निकलोगे। लिस्टेड स्पेस अनलिस्टेड में उससे भी ज्यादा है, वहां पैसा 0 हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है उसके अंदर में, लेकिन वहां पर एक तो मेरे को क्वांटिटी मिल जाती है, 5% 10% कंपनी शेयर्स मिल जाता है, और वैल्यूएशन उसके अंदर भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं जो मेरे को 5 या 6 के पी में मिलती है, जो आकर मेरे को नैरेटिव सुनाता है ना कि सर मैं IIM से आया हूं, मैं IIT से आया हूं, और एनवीडिया का इतना बड़ा मार्केट कैप है, इसका इतना बड़ा मार्केट कैप है, जो अपने आप को उससे कंपैरिजन करता है, मैं उससे मीटिंग भी नहीं करता हूं। मैं बोलता है टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है भैया, अपने को एनवीडिया वाला, अपने को किधर एनवीडिया वाले से मिलना है, एनवीडिया बनने जा रहा है अपने को। तो इस बोलकर तो मेरा उसमें भी एकदम पक्का है कि मेरे को अगर मेरे को वैल्यूएशन चीप मिलेगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो बस दूर से ही करके सलाम। क्या आपको बहुत सारी कंपनीज और नए एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं और आइडियाज के साथ हैं पर फंडिंग नहीं है उनको, क्योंकि आपने जैसे कहा जो आपके पास IIM और IIT आते हैं वो वैल्यूएशन भी हाई मांगते हैं, पर जो नेचुरल या ग्राउंड आप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो धंधा भी जानते हैं और रिटर्न लेना भी जानते हैं, धंधा भी जानते हैं और रिटर्न लेकर आना भी जानते हैं, तो आप उन कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या? डू यू प्रेफर दोज एज अपोज टू हार्वर्ड MBAs? द ग्राउंड अप वाले जो हैं, यू नो, स्टोरीज, यू प्रेफर दोज एज अपोज टू the IITs and Harvards which you don't entertain? Of course, उसमें एजुकेशन तो जरूरी है ही है इसके अंदर में, उसमें तो कोई उसके अंदर में बात नहीं, मैंने कोई IIT IIM के लिए नहीं बोला, लेकिन ये नहीं कि हर आदमी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है IIT से निकल कर, उसमें भी आपको चुनना पड़ेगा ना कि आपको अल्टीमेटली कोल माइंस में से ही आपको हीरा निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पर सब आकर खाली दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया दैट यू हैव कम फ्रॉम IIT और IIM, दैट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू मनी। व्हाट इज योर विजन एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टार्टअप के अंदर में आप जो भी आप आइडिया ले, और मैं कोई एकदम आइडिया स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जब वो कंपनी 3 साल 4 साल ऑलरेडी उसने पापड़ बेल लिए हैं, उतार चढ़ाव देख लिया है, 2-3 बार फेले होते होते बच गया है, उसने सीख लिया है समझो 3, 4, 5 साल से, तब मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं आइडिया के स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, ऑलरेडी ऑर्डर इन हैंड है, ऑलरेडी रेवेन्यू है, ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर में है, लेकिन उसको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, उसको खाली अपने आइडिया के ऊपर में पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे स्टेज पे और ऐसी कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, खाली नैरेटिव पे, खाली स्टोरी पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो विजय, आज ET Now का 17th बर्थडे है अगले हफ्ते। इन द लास्ट 17 years that you have tracked markets, सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई है आपकी? सबसे बड़ी लर्निंग स्टॉक मार्केट में वो हमेशा यही है कि ये बुल मार्केट बेयर मार्केट आते जाते रहता है, तो इसके अंदर में पैसा वही कमाता है जो पिच पे खड़ा रहता है। मैं कई बार और कई जगह आपके भी चैनल में बोल चुका हूं कि पिच पे जो आदमी खड़ा रहेगा ना, वो आदमी पैसा कमाएगा। अगर आप आउट होकर पेविलियन में अगर चले गए और बाद में 9 बॉल अगर आई, तो आपके बाद में जो आदमी खेलने के लिए आया वो उस पर छक्का मारेगा, आपका करियर खत्म हो गया, माने आपका वो वाला इनिंग खत्म हो गया। तो यहां पर जब आपको लग रहा है कि पिच अच्छी नहीं है, जब आपको लग रहा है कि बॉल बहुत खराब आ रही है, आप खेल नहीं पा रहे हो, आप उसको चुपचाप डिफेंसिव खेलते जाओ, उस पर अपनी पिच को मत छोड़ो। शेयर बाजार भी हमको यही दिखाता है, जब प्रॉब्लम है, जब वॉर है, जब इन्फ्लेशन है, जब अभी क्रूड है, ये है वो, आप चुपचाप खड़े रहिए बगुले के जैसे।
कि जब मछली आएगी तो मैं उसको मार कर उसको मैं ले लिया, नहीं तो मैं चुपचाप बगुला भगत के जैसे मैं बैठा रह गया तालाब के अंदर में बिना हलचल किए बिना। तो ये मैं यही समझा यहाँ पर। और जो खड़ा रहता है, जो बेयर मार्केट सबसे बड़ा टीचर है स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा जो टीचर है वो बुल मार्केट नहीं है। व्हेन वी आर राइट वी अर्न, व्हेन वी आर रॉन्ग वी लर्न। बेयर मार्केट में सबको मालूम पड़ जाता है कि भाई तुम्हारे में कितना दम है या तुम कितने होशियार हो। वो जो मैं जो आता है ना, मैंने किया, मैंने कर लिया, मैंने बढ़ा दिया, मेरा ये बढ़ गया। तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, शेयर बाजार में तुम करते कुछ नहीं हो, होता है तुम्हारे साथ में। तुम अगर पिच पे टिके रहते हो तो हर तरह की बॉल आती है, तो उसको तुमने मार दिया तो तुमको पैसा मिल गया। अब हम लोग इतने सालों से हर साल थोड़ी पैसा कमाते हैं। मैं कभी ये CAGR VGR नहीं देखता हूँ, 15% CAGR, 25% CAGR, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे ऐसे ऐसे शेयर 3 साल 4 साल नहीं चले और बाद में चले तो 2 साल के अंदर में 10 गुना हो गए, तो मेरा CAGR अपने आप सुधर गया ना मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगता मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये जो ये सब है कि CAGR देखना, ये करना, वो करना, वो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए कि 10 साल में ये परिवर्तन होएगा कि नहीं, 10 साल में ये मैक्रो कैप जो या माइक्रो कैप जो है ये मिड कैप बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर एक कंपनी 500 करोड़ की 5000 करोड़, 5000 वाली 50,000 करोड़ 10 साल में बनती है और आप उसमें 1%, आधा % कुछ भी शेयर्स आप उसमें लेते हो, चाहे जो भी आपके पास में जो वर्थ है, तो आपका पैसा 10-20 गुना 25 गुना ऐसे ही हो सकता है। तो राइट मोमेंट के लिए वेट करना चाहिए, राइट स्क्रिप्ट के लिए वेट करना चाहिए, हर बॉल पे मारने की ट्राई नहीं करना चाहिए। विजय, हम अपने डिस्कशन के अंत में पहुंचे हैं, पर जाते जाते एक आपकी नई नज्म हो जाए। अरे कोई नज्म नहीं है भैया मेरे पास, तुम फिल्म वाले उठा के ले जाएंगे मेरे को, क्या करेंगे। यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो इतनी बुरी बात तो नहीं है वैसे। नहीं, कुछ अभी दिमाग में नहीं आता है यार अभी। अच्छा, तो दैट सॉन्ग फॉर इन्वेस्टर्स एक बार विद लिरिक्स। मैं किसी को भी ना समझ में तो आए, तो बढ़ता बढ़ता क्यों गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जो सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया। लगता है सीधा साधा पर है ये भूल भुलैया, कोई भी बच ना पाया BA CA या MBA। 100%, as they say in emoji language. But Vijay Kedia, thank you so much for your time today. Always a pleasure. Thank you. Thank you.